Good evening, dear students. Today we are going to discuss the exercises of matrices. So, in this video, we will learn how to solve the question based on matrices. So, let us begin with the exercise first, and the question number first of exercise 1.1, which is we have to find here the order of the matrix given. Let A be any matrix 2 5 19 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 and 17. So first we have to find out the order of the matrix. So what will be the order? Order will be order of matrix A will be number of rows are 3. This is R1, this is R2 and this is R3. So number of rows are 3 cross number of column, this is C1, this is C2, this is C3 and this is C4. So there are 4 columns. Okay. So what will be the order? The order will be 3 cross 4. The second thing is the number of elements. So number of elements, if a matrix, if a matrices is of order m cross n, then the number of element it contain will be mn. So here what is the order? The order is 3 cross 4. So number of element कितने हो जाएंगे? Number of elements will be 3 multiplied by 4, that is 12 elements. Okay. Next, write the element A13, A21, A33, A24 and 23. Okay. So element A13, what is the meaning of A13? This one indicates the row and these 3 indicates the column. So what will be the A13 element? That is the element having position at first row and third column. So this is the first row and this is the third column. So first row, third column, what will be the element? The element is 19. Similar way, element having position A21, what will be the meaning of 21? A21 means element having the position at second row and first column. Okay. The first element, if we have order m cross n, that means m denote the number of row and n denote the number of the position of column. Okay. Here A21 means the element having position at second row and first column. This is second row and this is first column. So what will the element A21? The A21 element will be 35. Similar way, we can find A33. What will be A33? Third row, third column. What is the element situation at having position at third row, third column? This is third row. Okay, this is third column. So what is the element? The element is minus 5. Similar way we can find the other elements. Now question number 2, if a matrices has 24 elements. Question number 2 is, if a matrices has 24 elements. Okay, any matrix A, Aij having order m cross n, there are 24 elements. कितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स इसमें? 24 एलिमेंट्स हैं. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. ओके. सो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे? हम जानते हैं ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है बेटा m क्रॉस n. और अगर m क्रॉस n उसका ऑर्डर होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते हैं उसमें? mn हो जाते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 24. तो हमने क्या करना है? हमने कुछ नहीं करना है, हमने 24 के ऐसे 2 ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 हो जाए. ओके. सो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे इसके? पॉसिबल ऑर्डर सबसे पहले 1,24, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 ही होता है. इसका कन्वर्स 24 इंटू 1 है ना. नेक्स्ट 2 2 12, सिमिलर वे 12 2 है ना, प्रोडक्ट 24 ही होता है. फिर 3 के साथ 3 8 8 3. ओके. एंड 4 6 6 4. ओके. एंड 8 का तो आ ही गया 8 3. ओके. एंड नेक्स्ट 8 9 10 11 12 के साथ भी 12,2 हो ही गया. सो देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8. देर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स. कितने हो गए? 8 पॉसिबल ऑर्डर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आगे है, व्हाट इज
व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स है मैट्रिसेस में तब उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा। हम जानते हैं 13 के दो ही केवल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, एक तो 1,13 और दूसरा 13,1। वाई? बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर। सो 13 के लिए कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 13 के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे स्टूडेंट्स वो हो जाएंगे 1,13 और 13,1। केवल दो पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ओके, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि 13 का कोई और मल्टीपल होता नहीं है ना। 13 का कोई और ऐसा पॉसिबल फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 1 के अलावा 13 के अलावा और किसी से डिवाइड होता नहीं है। सो 1,13 और 13,1, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। सिमिलर वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. Now coming to the question number 4, construct a 2 cross 2 matrices whose elements are given by Aij is equal to. So we are coming to the next question number 4. We have to construct a 2 cross 2 matrix. Okay, we have to construct a 2 cross 2 matrix A equal to Aij. So first condition, if we have given Aij equal to I plus j whole of square divided by 2. Okay, so first we will define what will be a 2 cross 2 matrix. So a 2 cross 2 matrix contain 4 element. Okay, so we will write is just like that: A11, A12, A21, A22. Okay, this is a 2 cross 2 square matrix. क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, तो 4 एलिमेंट कंटेन करेंगे तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ A11, A12, A21 एंड A22. कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट रिप्लेस फॉर 1 A11 के लिए हम क्या करेंगे? रिप्लेस I एंड J विथ 1,1. ओके, सो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 + 1 होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2. सिमिलर वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A12. अब A12 के लिए क्या करेंगे? I को 1 से और J को 2 से रिप्लेस करने पर. ओके, सो 1 + 2 होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2, that is 3 square, 3 square that is 9 divided by 2. Similar way we can find A21, 2 + 1 whole of square divided by 2, that is 9 by 2 again. A22 will be 2 + 2 whole of square divided by 2, that is 2 + 2 4, 4 square that is 16 divided by 2, that is 8. Now substituting the values in first, so what will be the resulting matrix? The resulting matrix will be 2, 9 by 2, 9 by 2 and 8. Okay, this is the answer. Similar way you can construct all other matrices. Now coming to the question number 5. Here construct a 3 cross 4 matrices whose elements are given by. यहाँ पे क्या करना है? 3 cross 4 की मैट्रिक्स डेवलप करनी है। तो करेंगे क्या? 3 cross 4 में 3 रो और 4 मैट्रिक्स, 4 कॉलम लेके एक मैट्रिक्स पहले खुद से लिख लेंगे जिसके वेरिएबल अननोन होंगे. ओके, सो we have to construct a 3 cross 4 matrices. A 3 cross 4 matrices will be like that. Question number, this is question number 5. So a 3 cross 4 मतलब 3 रो और 4 कॉलम. ओके, तो 3 रो यानी A11, A12, A13, A14. ओके, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34. ये एक मैट्रिसेस होगी 3 cross 4 की, है ना. नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4. अब हमने करना क्या है? हमें कंडीशन दी है Aij इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट्स? 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ -3i + 4j. ओके, प्लस -3i + j. अब हमने करना क्या है? हमने इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ Aij. Aij की वैल्यू हमें दी है, हमने बारी बारी से i और j को रिप्लेस करना है जिस पोजीशन पे एलिमेंट है उसके नंबर से, और हमें फाइंड करनी है वैल्यूज. ओके, सो A11 दैट इज 1/2 टाइम्स -3 × 1 + 1. सो दिस विल बी गिव्स अस -3 + 1 दैट इज -2. चूँकि मॉडुलस एब्सोल्यूट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो -2 बाहर आएगा, प्लस का 2 देगा, तो दिस विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 1. सेम वे वी कैन फाइंड A12 1/2 टाइम्स -3 × 1 + 2. ओके, सो 1/2 टाइम -3 + 2 दैट इज -1. मॉडुलस से बाहर आएगा तो कितना दे देगा? ये 1 दे देगा, तो 1/2 × 1 दैट इज 1/2. सिमिलर वे A13 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स
minus 3 into 1 plus 3, that is 1 by 2 times minus 3 plus 3 gives us 0, that is 0. Okay, a 1 4 equal to 1 by 2 times minus 3 into 1 plus 4, that is 1 by 2 times minus 1 minus 3 plus 4 gives us plus 1, मॉडुलस से बाहर आएगा 1 1 ही देगा, तो दिस विल गिव्स अस 1 by 2. सेम वे a21 इक्वल टू 1 by 2 टाइम्स minus 3 into 2 plus 1, minus 6 plus 1 that is minus 5, मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 by 2. a22 this will be 1 by 2 times minus 3 into 2 plus 2, minus 6 plus 2 that will be gives us minus 4 मॉडुलस से बाहर आके क्या देगा 4 डिवाइड बाई 2, that is 2. a23 1 by 2 times minus 3 multiply 2 plus 3, minus 6 plus 3 minus 3 मॉड से बाहर प्लस का 3 आएगा, that is 3 by 2. सिमिलर वे a24 1 by 2 times minus 3 into 2 plus 4. ओके, minus 6 plus 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, मॉडुलस से बाहर प्लस 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 1. सेम वे a31 विल बी 1 by 2 times minus 3 multiply by 3 plus 1, minus 9 plus 1 minus 8 मॉडुलस से बाहर आएगा प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 दिस विल गिव्स अस 4. a32 दिस विल बी 1 by 2 times minus 3 multiply 3 plus 2. ओके, सो minus 9 plus 2. ओके, 3 3 9 minus 9 plus 2 minus 7 मॉडुलस से बाहर आएगा कितना 7 by 2. ठीक, a31 a32. नाउ a33 we have to find a33. this will gives us 1 by 2 times minus 3 multiply by 3 plus 3. 3 3 9 9 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, minus 6 बाहर आएगा प्लस 6 डिवाइड बाई 2 दैट विल गिव्स अस 3. a34 1 by 2 times minus 3 multiply 3 plus 4. ओके, minus 9 plus 4 minus 5 मॉडुलस से बाहर कितना हो जाएगा 5 by 2. नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन मैट्रिसेस. ओके, वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. सो वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, a11 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, a11 की वैल्यू कितनी थी 1, a12 की कितनी है 1 by 2. ठीक, a13 की वैल्यू कितनी है 0, a14 की वैल्यू कितनी है 1 by 2, a21 की वैल्यू कितनी है 5 by 2, a22 की वैल्यू कितनी है 2, a23 की वैल्यू कितनी है 3 by 2, a24 की वैल्यू कितनी है 1, a31 की वैल्यू कितनी है 4, a32 की वैल्यू कितनी है 7 by 2, a33 की वैल्यू कितनी है 3 और a34 की वैल्यू है 5 by 2. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. तो यहाँ पे जो दे रखी है मैट्राइसेस इक्वेशन के फॉर्म में, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है. कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो आपस में क्या हो, इक्वल हो. तो हम कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे, हम इनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनको आपस में इक्वेट करेंगे और वहाँ से अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दिस इज अ सिंपल मेथड. ओके, सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. 4 3 x5 this is part 1 equal to y minus yz1 5 yz1 and 5. ठीक, now since both matrices are equal, so just go through the corresponding position of element and equate them. so corresponding 4 के corresponding position पे यहाँ एलिमेंट क्या है y, so y की वैल्यू इक्वेट करने पर कितनी आ गई 4. z की करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे यहाँ मैट्रिक्स में क्या है वैल्यू 3, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी. ओके, सिमिलर वे x की करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 1 एलिमेंट है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 5 हो गए. तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. सेकेंड क्या है, x प्लस वाई 2 5 प्लस z
एक्स वाई इक्वल टू 6258 6258. नाउ ऑन इक्वेटिंग द एलिमेंट्स हैविंग करस्पॉन्डिंग पोजीशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके 2 इक्वल टू 2. 5 प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 5. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. एंड एक्स वाई इक्वल टू 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से z की वैल्यू तो कितनी आ जा रही, सीधे सीधे z की वैल्यू 0 आ जाएगी. 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा. ओके नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. ठीक, तो 1 और 3 से कैसे करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस वाई फ्रॉम 1. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो 6 माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई इक्वल टू 8. 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. नाउ टेकिंग माइनस टर्म हियर, सो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0. नाउ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ना, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, वाई स्क्वायर 4 और 2 हो जाएंगे, माइनस 4y प्लस माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0. y टेकिंग y कॉमन, y माइनस 4 टेकिंग माइनस 2 कॉमन, दिस गिव्स अस y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो y माइनस 4 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो y की दो वैल्यू हो जाती है यहाँ पे, एक तो 2 और एक तो 4. अब हमें चेक करना है कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे y की. क्लियर है. सो y की दो वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू पहले फाइंड आउट कर देते हैं. आपका x कितना है स्टूडेंट, x है आपका 6 माइनस वाई. तो x की दो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, y अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो 6 माइनस 2, एक तो 4 आ जाएगी. अगर y को 4 रखेंगे तो 2 आएगी, है ना. तो आप देख सकते हैं x और y की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे. अगर x की वैल्यू 4 लोगे तो y 2 होगा, और x की वैल्यू 2 लोगे तो y 4 हो जाएगा. तो दिस विल आर द रिक्वायर्ड आंसर. ओके ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा इसके. नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. इफ a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स कब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. क्वेश्चन नंबर 8. a इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, दिस विल बी अ स्क्वायर मैट्राइसेस इफ एंड ओनली इफ m इक्वल टू n. मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल होने चाहिए, तभी उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्राइसेस इक्वल. तो किस वैल्यू के लिए मैट्राइसेस इक्वल होगा, आप क्या करना, करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनको इक्वेट करके फाइंड कर लीजिए वैल्यूज. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1. देखिए स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स कोई 3 क्रॉस 3 की आप अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3 जिसका हो, कितने हो जाते हैं 9. ओके 9 एलिमेंट होंगे टोटल. अब है क्या, जो 9 एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ओके ये 9 एलिमेंट है. हर एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है, 0 और 1. ओके हर एलिमेंट के लिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे, है ना. एंट्री 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है. तो सीधा सा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, एंट्रीज कितनी है, 2 है ना, 2 एंट्री है, 2 में से कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं आप. तो 2 रेज़ टू दी पावर, टोटल एलिमेंट कितने हैं 9, तो 2 रेज़ टू दी पावर दैट इज़ 512 इसका क्या हो जाएंगे, पॉसिबल मैट्राइसेस बनेंगे. अगर इसी में अगर इसको ये कह देता, मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये ऑर्डर क्या दे देता, ये ऑर्डर देता हमें मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देता है, और एंट्री क्या दे देता है, एंट्रीज़ मान लीजिए देता है 0, 1 और 2. ये 3 एंट्रीज आपके पास हैं. तो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्राइसेस कितने बन सकते हैं, तो सबसे पहले तो 2 क्रॉस 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4. 4 एलिमेंट होंगे, हर एलिमेंट के लिए ऑप्शन कितने हैं, 3. तो 4 टू दी पावर 3 दैट इज़ 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ओके 64 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ओ सॉरी नॉट 64, ये हो जाएगा 3. एंट्रीज कितनी है आपके पास, 3 है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4. तो 3 रेज़ टू दी पावर 4. ओके तो 3 रेज़ टू दी पावर इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2. 3.2 एक्सरसाइज में क्या है,
एक्सरसाइज 3.2। सो 3.2 में पहला क्वेश्चन, लेट ए इज अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की, बी इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ हैविंग 2x2 ऑर्डर एंड सी इज अनदर। तो करना है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए दिया हुआ है हमें 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है हमें 1 3 -2 5 और मैट्रिक्स सी दिया हुआ है हमें -2 5 -2 5 3 4। ओके, तो फर्स्ट फाइंड करना है हमें ए प्लस बी। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ए प्लस बी। सो ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे? 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 एंड 5। सो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वी हैव टू ऐड इट। ओके, सो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 4 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे क्या है? 3। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। 3 प्लस -2, तो 3 + -2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 -2 हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 देगा ये। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। ओके, दिस विल बी द ए प्लस बी मैट्रिक्स। इसको एक अलग मैट्रिक्स ही नाम दे सकते हैं आप। सेकेंड, वी हैव टू फाइंड आउट ए माइनस बी। सो ए माइनस बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 4 3 2 -1 3 -2 एंड 5। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। ओके, 2 - 1 1 4 - 3 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 + 2 दिस गिव्स अस 5। 2 - 5 कितना हो जाएगा? -3। ओके, सेम वे वी कैन फाइंड 3a - c। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए बी? सो प्रोडक्ट ए बी कितना होगा? 2 4 3 2 एंड 1 3 -2 एंड 5। कैसे करेंगे प्रोडक्ट? प्रोडक्ट करने के लिए पहले वाले मैट्राइसेस का रो बाद वाले मैट्राइसेस से कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, सो 2 × 1 प्लस 4 × -2। नाउ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ऑपरेट करेंगे सेकेंड कॉलम में। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 × 3 प्लस 4 × 5। नेक्स्ट कॉलम है नहीं, सो इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे सेकेंड रो में। ओके, सेकेंड रो का सेम पैटर्न में सेकेंड रो का पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई। सो 3 × 1 प्लस 2 × -2। नाउ 3 × 3 प्लस 2 × 5। सो 2 × 1 = 2, 4 × 2 = -8, 2 - 8 that is -6, 3 × 2 = 6 and 5 × 4 = 20, 20 + 6 that is 26, 3 × 1 = 3 minus 2 × 2 = 4, 3 - 4 that is -1, 3 × 3 = 9 plus 5 × 2 = 10, 10 + 9 that is 90. This is the product. Similar way we can find out the value of BA. Okay. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, आपको करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है ऐड करने की कंडीशन में ऐड करना है, वो सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? कंप्यूट द इंडिकेटिंग प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोडक्ट हमें दिए गए हैं, जो मैट्रिसेस दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd and first part. Okay, a b minus ba minus b a, and second is a minus b b a minus b b a. सो प्रोडक्ट फिर वही कंडीशन है, पहले मैट्रिक्स के रो और बाद वाली के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे। सो a इंटू a दैट इज a स्क्वायर प्लस b इंटू b b स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। नाउ a इंटू माइनस b दैट इज माइनस ए बी प्लस b into a that is ba minus b into a that is minus ba plus a into b plus ab. Now minus b that is b square plus a into a square. Clear? So ab ba get cancelled out. Okay, yes, and here minus ba ab cancel out, क्योंकि एलिमेंट्स का फॉर्म है इसलिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे।
रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकेंड 1 2 3 2 3 4 एंड 4। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। कैसे? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कॉलम 1 और रो कितने हैं 1 2 3, सो 3 रो 1 कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ देखिए इसमें केवल एक रो है, ठीक है, नंबर ऑफ रो कितना है 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, है ना। तो कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो बाद वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। सो देखिए दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर पहले वाले मैट्रिक्स का रो और बाद वाले का कॉलम, मतलब जो भी मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना होगा, जो भी मिलेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 3 का आएगा। क्लियर है? सो फाइंड आउट करते हैं इसका प्रोडक्ट। सो 1 मल्टीप्लाई 2, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट। नाउ 1 मल्टीप्लाई 3, दिस इज सेकेंड एलिमेंट। 1 मल्टीप्लाई 4, सिमिलर वे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? सो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 4 3 जा 12. This will be the required matrices. Okay, similar way we can solve out all the other questions, and I am going to solve one more question. This is fourth part. 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6, and another matrix is 1 minus 3 5, 1 minus 3 5, 0 2 4 and 3 0 5. Now multiplying both the matrices, what is the pattern? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो बाद वाले मैट्रिक्स के किसके साथ, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे और ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे। पहला एलिमेंट A11, 1 1 मीन्स पहला रो पहला कॉलम, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलर वे अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 गिव्स अस माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 0 0, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। A12, अब A13 की चाहिए पोजीशन, तो पहला रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 प्लस 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। नेक्स्ट है नहीं तो यहाँ पे क्लोज। सिमिलर वे 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 3, 5 3 जा 15। ओके, सो 3 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 9, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 5 इंटू 0 दैट इज 0, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। क्लियर है? अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, 5 इंटू 0 5 0 0 प्लस 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 0 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 and 6 5 जा 30. Now adding 12 plus 2 that is 14, minus 6 6 that is 0, 20 plus 12 that is 32, 32 plus 10 that is 42, 15 plus 3 that is 18, minus 9 plus 8 gives us minus 1, 25 plus 15, 25 plus 15 40, 40 plus 16 56. Okay, now 18 plus 4 that is 22, minus 12 plus 10 that is minus 2 and 20 plus 20 40, 40 plus 30 that is 70. This is the required answer. Okay, so similar way you can multiply all other remaining part of this question. Now coming to the next question, question number 4. Here we have given 3 matrices and compute A plus B and B minus C. Also verify that A plus B minus C is equal to A plus B minus C. You can easily solve this question. Okay, now question number 5. If A is equal to this and B is equal to this, then compute 3A minus B 5B. Okay, so इसको फाइंड करते हैं। दो मैट्राइसेस दिए हुए हैं,
स्टूडेंट्स मैट्राइसिस में अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स ए गिवन है आपको 2/3, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 7/3, 2, 2/3। क्लियर है। मैट्रिक्स बी गिवन है हमको, मैट्रिक्स बी गिवन है 2/5, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 and 2/5। क्लियर है। सो वी हैव टू कंप्यूट 3a minus 5b, 3a minus 5b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a minus 5b? सो सबसे पहले स्टूडेंट 3a निकाल लेते हैं। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाई a, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का हर एक एलिमेंट के साथ, तो 3 पहले वाले एलिमेंट 3 डिवाइड हो जाएगा तो 2, सेकंड में 3 1 जा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 × 1/3 गिव्स अस 1, 3 × 2/3 गिव्स अस 2, 3 × 4/3 गिव्स अस 4, एंड 3 × 7/3 7, 3 × 2 6, 3 × 2/3 2। सिमिलर वे वी कैन फाइंड 5b। तो 5 टाइम्स मैट्रिक्स b 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 and 2/5। So 5 × 2/5 that is 2, 5 × 3/5 that is 3, 5 × 1 that is 5, 5 × 1/5 that is 1, 5 × 2/5 that is 2, 5 × 4/5 that is 4, 5 × 7/5 that is 7, 5 × 6/5 that is 6, and 5 × 2/5 that is 2. Now 3a minus 5b. So what is the value of 3a? The value of 3a is 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 and 2, minus what is the value of 5b? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 6, 2, 7, 6, 2. Now subtract the corresponding position of element. 2 minus 2 that is 0, 3 minus 3 again 0, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 7 minus 7 0, 6 minus 6 0, 2 minus 2 0. What is this? This is a null matrix. Okay, this is a null matrix having no element. Now coming to the next question, simplify cos theta multiply by cos theta minus sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta multiply by a 2 cross 2 matrix sin theta minus cos theta and cos theta sin theta. So we have to find out the value, we have to simplify this. So how we are going to solve it? Question number 6, cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta minus sin theta cos theta minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta minus cos theta sin theta. ओके, अब यहाँ पे है क्या स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में होगा। ओके, हर एक एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा दैट इज माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा दैट इज माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, दिस विल sin स्क्वायर थीटा। हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ एडिंग
एडिंग द टर्म्स हैविंग करस्पॉन्डिंग पोजिशन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट टर्म, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज 2 टाइम्स, क्योंकि ये भी माइनस तो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका क्या मिल गया 1 0 0 1। दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पे आपको इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया है उनको हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस वाई दिया 7 0 2 5, 7 0 2 एंड 5, ओके। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है हमें 3 0 0 3, 3 0 0 3। सो करेंगे क्या, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, दो इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। सो पहले x की वैल्यू निकाल लें, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ऐड करने पे y और y आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें क्या देगा 2x इक्वल टू क्या 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3, ओके। सो इसको क्या करना है, ऐड कर देना, तो 7 प्लस 3 दैट इज 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 दैट इज 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 टाइम्स दिस, 10 0 2 8। सो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट को, तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 गिव जस्ट 5, 1/2 इंटू 0 0, 1/2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 1, 1/2 इंटू 8 दैट इज 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 0 1 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y इक्वल टू कितना 7 0 2 5, ओके। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू y की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 7 0 2 5, 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, 5 0 1 4। सो आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन 7 की करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे यहाँ क्या है 5, तो 7 माइनस 5 दैट इज 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 minus 4 1. This is the value of y. Similar way you can solve the second equation. Now on coming to the question number 8, find x and y, x if y is equal to this.